Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, good morning. सर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया ना गूगल क्लासरूम में? हाँ अभी नहीं दिया मैंने असाइनमेंट. ठीक है. I was receiving some queries from multiple students in email, तो उसको अभी मैंने होल्ड पे रखा है. Okay, sir. Maybe today I will assign assignment 1 by end of this Okay. lab. Yeah. Okay, sir. सर असाइनमेंट 2 का भी अगर आप वो फाइल का लिंक या शेयर कर दोगे तो. हाँ, don't worry about those things because when the assignment will be assigned to you within Google Classroom only, you will get the PDF of the assignment. You can Okay, sir. download it from there and do the needful. Okay, सर sir. हमें सबमिट करने की भी ऑप्शन आएगी वहाँ पे? सब आएगा. Just wait and watch whenever So, it will be assigned. आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे. हाँ जी. सर जो सेकंड असाइनमेंट का है वो अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब बाकी तो हो रहे थे क्योंकि आपने ज़्यादा कराई दी थी. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें साइन कॉस लॉग वगैरह था और उसके अंदर साइन की, जैसे मैं अगर कोई साइन 30 में अगर मतलब जैसे इनपुट करता साइन ए एंड ए की वैल्यू जब 30 पुट कर रहा था स्कैन एफ करके तो वो नेगेटिव में आंसर आ रहा था. ओके आपने उसके साइन फंक्शन के बारे में ढूंढा था कि वो काम कैसे करता है? नो सर अभी सर्च नहीं किया सर वो रेडियंस में नहीं लेता इनपुट. Yeah, I think it takes the input in radians only. That's why I'm saying कि आप अपने end पे भी एक बार इसको देख लेना that how it ओके सर. works. ठीक है. साइन फंक्शन यूज कैसे करना है वो बता दिया मैंने, पर उसके अंदर वो काम क्या कर रहा है वो आप अपने एंड पे भी थोड़ा बहुत सर्च करके सीखो. ठीक है. हाँ जी सर. हाँ जी. Okay, so I think we should make few programs today which are regarding these things. Data types, operators, IO statements. So these are very basic things. This will actually boost your confidence. Okay, we will handle this thing one by one. But first, I want to ask from you that which program do you want to make first? I think this one is already covered on our end, right? So we don't need to make this one again. But now, out of these 5, which one do you want to make first? सर वी हैवंट डन अ टर्नरी ऑपरेटर, तो पहले वो कर लेते हैं. सबसे पहले टर्नरी ही करते हैं. ठीक है. आई थिंक आई हैड डिस्कस टर्नरी ऑपरेटर while discussing assignment 2 last week, but then I will again discuss these things. Give me 1 second. I will share my screen. I will open the compiler on NC compiler. I will sharing the screen now. Excuse me, sir. Yes. We can upload the assignments either in the MS Word or Docs format. It will be done in PDF format only. Don't worry about these things. When you will receive the assignment in Google Classroom, everything will be written there. You can just go through the instructions at that time. Preferably, I will put the instruction that you have to submit the assignment 1 solution in PDF form. Single PDF for one person. That's it. Okay, sir. Yeah. So can you people see my screen? Online compiler? Yes, sir. Okay. So let's discuss ternary operator first. And before that, I will make you revise if else statement. So let me make a small program to find even odd number, that which category the number belongs to. So if I write hash include stdi.h and then I write int main. So let's say I'm inputting the number from the user, so I can use a scanf because I want to get the input from the user. So scanf will help me in that. Scanf %d because it's an integer, and ampersand sign because we want to assign that number within the RAM. We want the memory should be given to it. Now if I want to check if my number is even or odd, what should I do? What should be the condition? Can you tell me? Anyone? And if N is ampersand equal is equal to 0. 1% true. One by one. In mod, Mod 2 equal to 0. equals to 0. Equals to 0. Yes. So this should be it, right?
mod means remainder. If my remainder is 0 after dividing it by 2, it means it's an even number. And it's if it is not qualifying for this condition, it means it's a odd number. So I will write it in else part. So it's very easy to understand, somewhat intuitive also. So if I run this program now, I will give an input. Let's say I will first reduce the size. Now let's give the input, and the input be 15. So my output should be odd number. So it is giving the right answer. I will run it for some even number now. Let's say 6. It's even number. Yeah, it's working fine. So the code is right. Everything is fine. But now, first I want to discuss this if also. Maybe some of you still are unable to understand that how this if works. It is somewhat intuitive. So what we are doing is we are checking a condition that if my remainder is equal to 0. So it is a condition check at this point. And if my condition is fine, if it is true, if the condition is true, the first condition, then it will run the if part. And if part has a single statement at this point. So I did not care to include this curly brackets. I can add it, but curly brackets are more helpful when we have multiple statements. But if I want to just write single statement, then skipping this curly bracket will not harm our program. Similarly, if that condition is false, and so it will not enter into this thing. So eighth line will not be executed if my condition is false. Eighth line will only be executed if my seventh line is giving the output to be true. So if my condition is true after the check, then only eighth line will be executed. But if my condition is false, so in that case, it will go and jump to the, actually, it will go and check for the else condition. And because now else says that we should say it is a odd number, so obviously it will have to run that. But it does not mean that you cannot write another if statement here. So we can also write else if n mod 3 equal to 0. So even if I mean this thing can be helpful, let's say to uh, find a number which is also divisible by 2 and then divisible by 3. So maybe multiples of 6, right? So that kind of a thing uh, will help us. If it is a even number, then we will go and check else if it is also divisible by 3. So in that case, we can say that that number will be factor of 6. So that kind of a thing can be done, but I'm not complexing it right now. It's just that we are using if else, and it is very intuitive. Now if I want to convert this into single line, it can be done using a ternary operator. So the condition is same. Instead of writing if in front, I am writing a question mark in the end. The condition will be checked, and if it is true, if the condition is true, it will go ahead and run this second part of this ternary. I will let you know what is why it is being called ternary. So this is actually the full statement here now. So if you see, it's a single line statement in which we have a ternary operator. Ternary operator is only there is only one ternary operator in whole of the C programming. So it's this operator. And why is it called ternary? I will help you understand this concept also. Because it has 3 parts assigned to it. The condition, and after this condition, we have this thing, true part and the false part. Okay. Yes, sir. So these are the 3 things. Because of these 3 things, we say it is a ternary operator, ternary something like 3 parts, right? Similarly, there are unary operators also. There are actually 3 types of operators: unary, binary, and ternary. So you know, ternary means we have 3 parts. Can anyone tell me what is binary operator intuitively? It will have 2 parts. Yes, Answer. sir.
Okay, so when I say plus, minus, multiply, divide, all of them have two parts. Why? Because we can do the plus on two variables, minus on two variables, multiplication, division, even the mod. So all of these things can be done on two variables. So in a way, there is one more thing to be highlighted here. These are my operators: plus, minus, multiply, mod. All of them are plus, minus, multiply, divide, mod. All of them are called operators. So there is this concept of operators because these are doing the operation, and on which the operation is being done. These two, A and B, in this case, are called the operands. So when we have two operands, we say it's my binary operator, which is working on two operands. Ternary operator needed three operands. In this case, the three parts were the three operands. So this was my one operand, this was the other operand, this was my third operand, because it had three parts. Similarly, unary operator has one operand. And can anyone tell me an example of unary operator? Plus plus x. Sir, plus plus. Plus plus or minus minus, right? It can be x plus plus, or it can be plus plus x. I will come to the difference. It can be x minus minus or minus minus x. So these are the single operand unary operators. Plus plus is my increment operator, so it has a name. It is called increment operator. Minus minus is called decrement operator. Increment and decrement operators. So plus plus is my increment, minus minus is my decrement. And can anyone tell me the meaning of this thing? Let's say a equal to 1 and I write a plus equal to 10 and I do printf a. 11. 11. 11, sir. 11, right? Why? Because a plus equal to 10 is equivalent to a equal to a plus 10, right? Now, if I say a equal to 1 and a plus plus, what will be the output of a after 2. this? 2. Yes, 2. Is there anything called a plus plus plus? No, sir. No, sir. No. No. Okay. So when we say a equal to a plus 1, or we say a plus equal to 1, or we do a plus plus, all of them are adding 1 to my current variable of a. So 1 plus a is being done, right? Sir, plus equals to is a unary operator. Plus equal to is not a unary operator. It is a kind of binary operator. Why? Because it is needing two things on the left and the right, Yes, sir. right? So this one can be a variable also. If you do a plus equal to b and a was 1, b was 2, so this thing also true. This is also true, right? So a equal to a plus b. In fact, I think I discussed swapping last time, and within swapping, did we discuss this thing? A equal to a plus b, a equal to a minus b Yes, equal to a sir. minus b. Yes, sir. So I said that we can convert this a equal to a plus b into this format, a plus equal to b. So it is this plus equal to is a binary operator. Okay. Now the ternary operator is clear. So, Excuse me, sir. Yes. so when we have fixed the value of b, even then it will be not called a unary. No. देखो ऐसा है, अगर आपके वेरिएबल को दो चीजें चाहिए, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, ठीक है, प्लस इक्वल टू विल ऑलवेज वर्क अगर उसको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड एक ना एक चीज मिलनी चाहिए. अगर कुछ नहीं मिलेगा, दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, कैन यू राइट समथिंग लाइक दिस, a plus equal to that's it? This is No, sir. not true, right? So we need something on the right hand side also. That's why it is we say that it is binary, because it needs two operands, two things. Clear, sir. Yes. So can't we have multiple statements within the ternary operator as in the if else, right? Like we write multiple statements within if only, but here we are writing only one single statement in ternary operator. Yeah, I have tried that earlier. So if I write this kind of brackets and I try to write multiple statements, then it will be compulsory for me
to differentiate between the different statements, let's say printf after even number, I also want to say number is %d and then n. If I write these two things, so I will have to put this semicolon at the end of both the statements. Yes or no? Yes, sir. Which is against ternary operator rule. We cannot use semicolon between the statements. It has to be only, it will only come once at the end. अगर आप यहाँ पे semicolon डाल दोगे, it will give you an error. So it's a single statement only. It has to be a single statement only. Yes. So in case of else if, तब हम we cannot use this ternary operator thing. Yeah. When we're using multiple statements and So- else if is used. So in that case, maybe you can use a nested ternary operator. Yes, sir. So in that case, what we can do is, let's say I say here, if my so let's say if my n is also divisible by 3, it means obviously it's a divisible of 6. So double conditions, and I will say printf factor of 6, right? And for this else, I might want to write printf not factor of 6. So this will become confusing for some of the students, but just for the sake of understanding, we are using first ternary operator. The condition is being given, and then within that I am writing this thing that it can go ahead and print this, and then I can do this. So if this thing goes fine, Clear, sir. yeah, that kind of a thing can be done. You can use ternary nested. Okay, so if you have a doubt in this, you can ask. Otherwise, I will go ahead with the next question. Printf even. Sir, when we want to give two conditions, we just put a space in between them Two conditions as in? before the question, the ternary operator, like you did, like n%2 and n%3 is equal to 0. So that was only done if I want to replace this printf even part. So instead of writing directly the result, I might want to add another ternary condition inside it using a single statement. So like a nested loop, but in one line. Yeah, it's a nested ternary operator. Okay. Okay. So let's come to the next program. So maybe we can make this one now. It's easier. We will get this done. Now focusing on Celsius to Fahrenheit converter. Okay, coming to the coding part. So now if I want to make a program of Celsius to Fahrenheit, what to do now? Quickly. सर एक इनपुट ले लेंगे और उसको डिफाइन कर देंगे f minus 32 into 5 Prepare the C and F, we'll declare the variables. तो float ले लेते हैं because it can be a point number, right? So C Yes, and sir. F, both the variables will be taken. And now if I want to We get can the input of C, right? So scanf %f. Let's get the Celsius from the user. So this can be done. Now how will I calculate Fahrenheit? So it was C C minus into 9 by 5 plus 32. 9 by 5 into into C. C plus 32, right? Yes, sir. C plus 32. But in this case, this might give us an error because I'm not giving Sir, float here. So maybe I can write float like this. So this can be done, right? So now if I get the printf,
So we can also write 9.0 and then it will be yes, yes, it will be. If I can write 9.0, it will be considered as a float number. So now if I write the printf and equivalent, where it is %f, comma f. So let's run this now. So if I give the input, what should be the input? Let's say minus 40. okay, minus 40. Let's do it. So the output is coming out to be minus 14. Is it fine? सर आई थिंक आपने फॉर्मूला गलत डाला है, वो C Yes, प्लस sir. 32 ब्रैकेट में नहीं होगा, C into C प्लस 32 अलग. अच्छा, And 9 Yes, by sir. 5 C एक 32 था is तो not 32 अलग. हाँ ठीक है, आप कह रहे हो 9/5 C अलग होगा, ठीक है, ऐसे हाँ कर जी. देते हैं. फाइन नाउ. अब तो वो बॉड मास वाला चली जाएगा, तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है. सर यस. जो ऑपरेटर्स का क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है हम्म. वो ये क्या है. है? It will be taught to you in the class. Okay, sir. It is a table. उसमें बहुत सारी चीजें हैं. Within this plus minus multiply, generally maths वाला rule works, but then there are other things also. Okay, sir. Yes. ठीक है. So is it fine now? Minus Yes, sir. 40 वाला. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Okay. So let's do it for the normal human body temperature. Let's say 36.9, 98.4. Yeah, it's fine. Okay. Any doubt in this? No, sir. Okay. no sir. Let's come back to the other programs. Okay, so let's do this one. Let's do this one. Input consists of two integers. The first integer corresponds to the number of students in the class. Second integer corresponds to number of teams. So it's just a simple input of two integers. It doesn't have to do any operation. We don't. I mean, if you have a doubt in this, if you are unable to do this kind of a thing, then you can ask. Otherwise, you can directly input two numbers. That's it. So we just need to input and just we'll in the printf we'll just write this Yeah, equals number to of students हाँ. and number of teams. That's it. Okay, sir. Okay. So let's come to this one now. Given the coordinates of the two endpoints x1, y1 and x2, y2, write a program to find the midpoint. So can we make this? This is an easy one, right? Yes, sir. It's a class 10 problem. So we will have to input x and y two pairs. So coming back to this. So we will be we will be inputting like 6 variables, na? देखते हैं. Let's see. Midpoint of the line. So if I want to do this, I will have to give two things. Variables 6 होंगे क्योंकि मुझे वो midpoint वाला भी ढूंढना पड़ेगा. Yes, So sir. what I'm doing is x1, y1, x2, y2. Sir, x और y ले लो. Yes, sir. X और y दे देते हैं as a midpoint. ऐसे कर लें? Yes, sir. Okay. So now if I want to get the inputs of these integers, I can simply do it by scanf. Scanf can be %d, 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 %d 4 times, and I will get the input of 4 numbers, which are x1, y1. ampersand. हाँ, अभी लगा रहा हूँ. x2 and y2. Not forgetting the ampersand because we want to assign them some memory. So once I have these, what will be the formula to calculate x? x1 plus X1 plus x2 x2 divided by by 2. 2. x1 plus x2 by 2, right? Yes, sir.
Similarly for y we can So, do so it. should we put Sir, this वो in the bracket? Brackets. brackets डाल दो sir. ये लो. So doing it for y. Now the midpoint can be printed, right? So printf the midpoint is the midpoint of x1 x2. So should we write %d, %d? हाँ वही कर रहा हूँ. Using the escape character to print these brackets. So midpoint of this thing and the other thing is the third one, but then x and y we have taken as integers. It might not, it may fail to get the float number if the values are in points. Sir, एक बार ये slash समझा दो. Why have we used this? अब अरे समझा रहा हूँ. Special character, no? अरे x1 y1 को भी फ्लोट में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये x1 प्लस x2 बाय 2 क्वांटिटी भी अगर फ्लोट आ गई तो. अच्छा अच्छा हम्म. okay. Float. Okay, so the midpoint of this and this is this. और मुझे ये वाला float में print करवाना है result. And I can give the outputs now. x1, y1. Hmm. And the last one xy. Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं, इसको रन करते हैं. कंसेप्ट सबको समझ आ गया, आउटपुट देखते हैं कैसे आ रही है. Now if I give the input, क्या दिक्कत है? एस्केप सीक्वेंस, ये ब्रैकेट का कुछ इशू पड़ रहा है. Let's skip the brackets. Let's not use it if it is giving error for now. Sir, एक बार slash भी समझा दो. Why have we used the slash? स्लैश गलत डाला है. स्लैश इसलिए डाला था बिकॉज आपको याद होगा मैंने एक शुरू में करवाया था. इफ आई वांट टू, ब्रैकेट के बाद डालना था ना, शायद अंदर नहीं था. नहीं ऐसे होता है ना कि जैसे अगर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं बैकस्लैश डाल के उसको एज ए स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करवाया था. अच्छा, yes sir, remember. हाँ जी. तो मैंने हल्का सा वो लॉजिक लगाने की कोशिश की थी, बट वो चला नहीं अपना. डजंट मैटर, स्टिल द आउटपुट विल बी फाइन. मैंने वो हटा ही दिया इशू. अब x1 x2 बताओ क्या क्या आएंगे. x1 y1 की वैल्यू क्या आएगी पहले ये बताओ. So 3 और 6 ले लो, फिर वो float में आएगा. हम ना एक वो ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं x1 y1 को. एंड x2 y2 बताओ अब क्या लेना है. 3 6 ले लो. 3 6 ले लेते हैं. ओके, 3 and 6. So the output is coming out to be this. 1.5 and 3 are the midpoints. ठीक हो गया. Yes sir. Yes Okay. sir. And I can always do this thing 0.1 क्योंकि मुझे नहीं चाहिए 6 वाले. So that will be fine. So 0 0 3 6. So yeah, it's working now. Maybe you can also do this thing अगर आपने इसको कोड्स में डालना अलग से, just to highlight के मेरा पेयर क्या है. Otherwise it is still fine. 0,0 and 3,6 पता चल रहा है कि वो मेरे x1 y1 है. सर, तो ये स्पेशल कैरेक्टर वाला हम मतलब ब्रैकेट के लिए इट्स नॉट एप्लीकेबल या फिर अभी चल नहीं रहा है? ऐसे नहीं है कि अभी नहीं चल रहा. इट मीन्स इट्स नॉट एप्लीकेबल इन दिस वे. तो राउंड ब्रैकेट को अगर मुझे वहां पे लिखना है आउटपुट में, वो ढूंढना पड़ेगा कि वो बैकस्लैश से नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा. ओके सर. यस. तो वो बैकस्लैश बस एक स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड करने के लिए. हाँ, यस, बिकॉज सर मैंने अभी ट्राई किया, आप खाली ब्रैकेट नॉर्मल डालो तो प्रिंट हो जाता है, as long as it's under the double quotes. अच्छा, मतलब एज इट इज हो जाएगा बिना किसी Yes दिक्कत के. sir. ओके, या दैट कैन बी द केस.
क्योंकि कलर उसका ग्रीन ही है, मतलब एज ए कमेंटी वो उसको उठा रहा है, जैसे द मिड पॉइंट लिखा हुआ है वैसे ही एक ब्रैकेट आ रहा है, तो शायद Yes, इसीलिए इशू आ रहा था। सो 0 0 3 6 अब ठीक है। yes sir. Sir तो और इस वो Yes, वन sir. इसके लिए डाला था क्योंकि टू लिमिटेड टू वन डेसिमल पॉइंट ना. यस यस अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यस, इसलिए यहाँ पे वी हैव रिटन 0.1। Okay sir. ओके, सो इज दिस प्रोग्राम क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ओके, लेट्स गो बैक टू द लिस्ट। वहाँ पे देर इज वन प्रोग्राम नाउ, ये वाला भी हमारा हो चुका, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, already done. Now this is the last one which we need to discuss. We should find the number is even or odd, but using the bitwise AND operator. So let's discuss few things about bitwise and bitwise or कि इनका मतलब क्या होता है. So it is similar to how your AND gate works. So can you tell me the AND gate table? Anyone? How does AND gate works? You must have studied that in digital electronics. Yes sir. So when Yes. both the bits are 1, so तभी output 1 होगा. Yes, sir. जब दोनों 1, जब दोनों 0, then it's 0 and 1. वरना 0 1 0 1 is जीरो 0. वो तभी 1 होगा अगर दोनों 1 है, बाकी सारे केसेस में 0 होगा। Yes, sir. अगर वो दोनों 0 हैं, एक 0 है, it will be 0 only, because there is a rule of AND gate that if even one of the bit is 0, the output will be 0। ठीक है, तो तो एक चीज हाँ जी, हाँ जी। सर, ये हमने अभी एंड हमने लाइक लेक्चर में देखा था, तो डबल एट आता है, वो डबल एंड वाला नहीं आता। बिटवाइज वाले की बात हो रही है, बिटवाइज में डिफरेंट होता है। बिटवाइज में सिंगल होता है। ओके, ठीक है। बिटवाइज में इट इज ऑलवेज सिंगल। जो आप दूसरा कह रहे हो वो लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल है, ये वाला बिटवाइज है। सर जब दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना होता है तब वो लॉजिकल वाला यूज करते हैं ना, डबल एम्परसेंड। उसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि मेरी ये कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू हैं, तब मतलब फॉर एग्जांपल मुझे वो 6 का टेबल प्रिंट करवाना है, सपोज 6 का टेबल प्रिंट करवाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, इफ माय a mod 2 equal to 0 and b and a mod 3 equal to 0, तो मुझे ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तब मैं डबल एंड ये वाला करता हूँ। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, यस सर। but if Yes, I sir. say, I have a equal to 2, b equal to 3, and I want to do this a and b, it means I'm kind of doing the bitwise wala and bitwise mein you have to convert your numbers into Binary. binary. It will be 1 0 and 1 1, and in this case your output will be, after doing this, you will be getting output as 2 only, just तो for सर the तो वो बाइनरी एडिशन करता है. ये बाइनरी एडिशन नहीं कर रहा, ये कौन सा बाइनरी एडिशन कह रहे हो आप? वो जो सर डबल जो एंड वाला हमने था? नहीं सर, जो हमने सीखा था कि 1+1 का 0 1 हो जाता है और वो सब. देखो, जब आप ये वाला एंड लगा रहे हो, दिस सिंगल एंड मींस यू आर डूइंग ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एंड इट एक्चुअली वर्क्स सिमिलर टू योर एंड गेट जो आपने पढ़ा हुआ है। तो 1 and 1 will be 1, 1 and 0 will be 0, that's it. ओके सर. Similar to this, there is also this one, which sign is this? Can anyone tell me? XOR। Yes, it is XOR, एंड XOR में रूल होता है कि अगर दोनों नंबर सिमिलर हैं तो आउटपुट 0 आएगा, अगर दोनों नंबर ऑपोजिट हैं तभी वो आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, these are the some basic things. Now question was that you need to use this operator, bitwise AND operator, to find if my number is even or odd. Can anyone tell me the logic? What we can use now? क्या कर सकते हैं? सर हमें इसको इवन ऑड के फॉर्म में यूज करना है। मुझे कुछ ऐसा कंडीशन लिखना है कि मैं एंड लिख के यहाँ पे लिख दूं ये इवन है, एल्स इट इज ऑड। तो ऐसी मैं क्या कंडीशन लिखूं कि मेरा ये वाले एंड से बात बन जाए?
सर नंबर और अगर रिमाइंडर 0 है कंडीशंस। सर अगर वो मतलब हमें वो 1 लेके आना है ना दोनों में। 1 लेके आना है दोनों में, कैसे करोगे? तो लाइक एक अगर सेकंड। हमें 3 दिया है तो हम 3 एंड 3 रिमाइंडर 3 मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम या 3 मॉड 2 लिखेंगे तो अगर फिर नंबर दोनों नंबर्स अगर अगर जैसे रिमाइंडर अगर 1 है तो फिर 3 और एंड 1 आ जाएगा तो उसका 1 रिटर्न करेगा ना शायद। बट ये तो मेरे को 2 रिटर्न कर रहा है एंड करने पे। हमें तो सिर्फ ये यूज करना है ना एंड वाला, मैं ये कह रहा हूँ। तो मतलब हमें जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर सारे ट्रू चाहिए। देखो एक ना बड़ी सिंपल सी चीज होती है। लॉजिक ये है कि अगर मैं सिर्फ आखिरी वाले बिट पे फोकस करूं, क्योंकि कोई भी नंबर इवन है मेरा, उसका जो मेरा एलएसबी होगा, एलएसबी क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो मेरा सबसे राइट मोस्ट वाला होता है वो इवन वाले में हमेशा 0 होता है। यस और नो? अगर आप यहाँ पे 2 लिखो तो 1 0 होगा, 4 लिखो तो 1 0 0 होगा, 8 लिखो तो 1 0 0 होगा, मे बी 6 लिखोगे तो 6 भी आपका क्या होता है? 1 1 0, राइट। 8 लिखोगे हो गया, 10 लिखोगे 1 0 1 0। तो देखा है तो ये वाला मेरा बिट हमेशा 0 है। यस सर। और ऑड में अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो 0 1, 3 लिख रहा हूँ तो 1 1, 5 लिख रहा हूँ तो 1 0 1, 7 लिख रहा हूँ तो 1 1 1, मेरा ये वाला बिट हमेशा 1 है। यस और नो? यस सर। तो क्या मैं अगर इनको एंड करूं और सिर्फ एक आखिरी वाला बिट चेक करूं एंड करने पे, तो क्या वो मेरा अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा, एक सेकंड मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। इफ आई हैव 2, लेट्स से माय n इज 2, ठीक है, ये बाइनरी वाला 2 है। अगर मैं इसको एंड कर दूं 1 के साथ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा इस केस में, यस सर। ठीक है। अगर मैं 4 के साथ एंड 1 कर दूं तब मेरा आउटपुट क्या आएगा? अगेन 0 आएगा। यस सर। अगर मैं 6 के साथ कर दूं 1 को एंड, फिर से 0 आएगा। यस और नो? यस इस सर। इसका मतलब ये है कि इफ आई, instead of checking the mode, now if I say that int n मेरा जो भी हो, scanf करवा लो, %d %n. So if I say now if my n and 1 equal to 0, it means my number is even. अगर 0 नहीं, अगर वो, एक सेकंड मैं दोबारा टेस्ट करूंगा इसको। सो इफ माय नंबर, जब मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, सपोज 2 सर तो था, इवन होएगा ना? अरे सुन तो लो, हाँ इवन ही होगा, मैं यही कह रहा था, मतलब ये कंफर्म करने लगा था। सो इफ आई हैव लेट्स से 3, तो अगर मैं उसको 1 के साथ करूंगा तो मेरा एंड करने पे इट विल बी 1, ठीक है। तो अगर मेरा आउटपुट 0 आ रहा है तो वो इवन होगा, एल्स इट विल बी ऑड, ठीक है। तो आई विल बी डूइंग दिस नाउ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इट इज इक्वल टू 0 करने के बाद एंड 1 करने के बाद, ये बिटवाइज एंड है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इवन होगा एंड अगर वो चीज़ नहीं ट्रू होती तो वो अपने आप आएगा यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में, एंड इट विल से द नंबर इज ऑड, ठीक है जी। तो मतलब वी आर एक्चुअली वी हैव मेड दिस प्रोग्राम नाउ जिसमें वी आर सेइंग इफ माय नंबर इज इवन और ऑड बाय यूजिंग दिस m%1, ठीक है। m%1 का मतलब है कि हमने बिटवाइज एंड करा है और मेरा अगर आउटपुट 0 आ रहा है ऐड करने पे, इसका मतलब वो इवन नंबर था, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी आपका इवन नंबर है उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा। 2 4 6 8 10 12 कोई भी उठा के देख लो, हमेशा आपका फर्स्ट डिजिट 0 होगा। और ऑड के केस में हमेशा फर्स्ट डिजिट 1 होगा। तो यूजिंग दैट थिंग वी हैव मेड दिस कोड नाउ, लेट्स डू द रनिंग। हाँ सेमीकोलन रह गया यार। ओके, सो इफ आई
Now give the input maybe 8. The output is odd number y. 1 second. Now if I have 8, अगर मैंने उसको 1 के साथ AND किया, it is giving 0. तो ये even देना चाहिए इसको. 1 second, let's do something. सर मैंने हम्म, अभी ये बनाया एक कोड, हम्म, मैंने ट्राई किया तो काम कर रहा था, शायद मेरे लिए तो काम कर रहा था। मैंने बस नंबर और नंबर का रिमाइंडर को के साथ किया, तो अगर दोनों इवन है तो जीरो रिप्ले अगर दोनों जैसे अगर इवन नंबर है तो 2 होगा और रिमाइंडर भी 0 होगा, तो उसका ऑड कर दूंगा क्योंकि उसका फॉल्स आएगा। नहीं, उसका इवन कर दूंगा एल्स में। और एक इफ काम वाले करते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आई एम गिविंग यू द परमिशन, यू कैन डू द स्क्रीन शेयरिंग. ओके सर। Okay, RN Gupta, right? यस सर। Now you can share your screen. I have given you the permission. ओके Till, सर। till then I am also checking my code के इसमें ऐसा क्यों आ रहा है. दिख रहा है सबको? हाँ हाँ. Yes. सर तो मैंने ऐसे यहाँ मैंने इंट एन लिया, फिर यहाँ स्कैन किया कि कोई भी नंबर डाल दो, फिर मैंने यहाँ नंबर लिया और नंबर का रिमाइंडर लिया जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो देखो, बात ये नहीं है कि आपने एम्परसेंट यूज करके ये काम कर लिया, बट अभी भी आप वो mod 2 कर रहे हो. अच्छा, mod 2 यूज ही नहीं करना? mod तो यूज ही नहीं करना, हमें यूज ही सिर्फ और सिर्फ एम्परसेंट करना है. तो इससे भी काम हो जाना चाहिए, मैं खुद करता हूँ। करके देखो. एक्चुअली इक्वल हाँ, इक्वल ये जीरो करने गलत की है। इक्वल जीरो करने की जरूरत नहीं थी, आई गेस. लेट्स, अच्छा। हाँ, आप एक काम करो. अगर आप एंड जीरो कर रहे हो, ठीक है, एंड जीरो का मतलब है कि आप, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन पे, आई होप एवरी वन कैन सी इट देन. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल सो वो ट्राई टू. 7 का भी इवन आ गया इसमें. हाँ, मैं एक मिनट 1 करके ट्राई करता हूँ। एक सेकंड. ओके, अब एक बार इवन ट्राई करना. अब चल रहा है। नाउ इट्स वर्किंग सर, अब चल रहा है. ठीक है. तो यू हैव डन दिस कि आपने एंड वन किया. एंड वन करने से हमारे पास अगर वैल्यू फॉल्स होगी, फॉल्स कब होगी? अगर मेरा इवन होगा तो वो इवन देगा, एंड Yes, sir. अगर वो वन करने पे वन आएगा, मतलब ट्रू आएगा, तो वो ऑड होगा. ठीक है. सो इज दिस कोड क्लियर नाउ? सर एक चीज समझ नहीं है सर, ये तो उल्टा हो गया ना अब, आपने जैसे बताया तो था. इसने इवन नीचे लिख दिया, एल्स में मैंने इवन इफ के वाले सेक्शन में लिखा था, बट मतलब. सर एन हाँ, और एन और वन का जब हमने ऐड किया था तब तो वो हर बार 0 आ रहा था, तब वो इवन होएगा. हाँ, तो तो इसने सर किया है ऑड. 1 हाँ, सेकंड. क्योंकि मैंने इक्वल टू जीरो नहीं किया ना, तो जैसे अगर इक्वल टू जीरो हाँ, नहीं हुआ तो उसका ट्रू होगा, तो ट्रू में वो ऑड रहेगा। सर और बट जब हमने वो उसको फॉल्स, इक्वल टू तो कुछ दिया ही नहीं फिर हमने. अगर Yes, इक्वल टू जीरो करूंगा तो इसका इवन करना पड़ेगा और वो इसका सर ने ऑड। किया था, उसके अंदर उल्टा आ रहा था, एक बार चेक कर ले. हम्म. सो इट्स वर्किंग. तो काम कर। ओके. सो
सर मेरे को लगता है आपने शायद ब्रैकेट नहीं डाले थे एंड एंड वन में, तो वो 1 और 0 केस को एक यस साथ कर रहा यस था। यस यस यस, वो हमेशा 1 इक्वल 0 को फॉल्स करके हमेशा और में लेके जा रहा था, इशू यस वही सर, था। ठीक यस है, सर। हाँ। तो कमिंग बैक टू माय स्क्रीन, आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो, मैं यस इधर सर, वापस अपने वाला करता हूँ। यस सर। सो यस, यही इशू होगा। शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। सिर्फ एक ब्रैकेट का इशू था। सो इफ आई गिव even number as input now, let's say 8. It's working now. So we have to take care of this thing also कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे, ठीक है, उस केस में 1 इक्वल 0 वो उठा लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना होता, वो क्या कर रहा है बैकएंड पे, बिकॉज हमने अभी प्रेसिडेंस वाली चीज नहीं बीच में डाली। सो प्रेसिडेंस में इक्वल 0 पहले चेक हो जाएगा। 1 इक्वल 0 विल बी ऑलवेज फॉल्स, that's why it was always giving me odd number irrespective what my number is. But now if I give this in the bracket, then it is working fine. If I'm giving odd number, it is giving me odd number as the output. If I'm giving the even number, it is giving me even number as the output. Clear now? यस सर। सर वो डबल इक्वल्स टू वाली कंडीशन नहीं थी तब भी वो कैसे वर्क कर रहा था? अभी जैसे आर्यन की स्क्रीन पे हमने देखा वो सपोज कैसे हुआ? सपोज मैं यहाँ पे ना लिखता ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज स्टिल डीलिंग विद इट इज स्टिल डीलिंग विद दिस थिंग। अगर मैं 8 इनपुट दे रहा हूँ एंड 1 मैं करता हूँ, तो मेरी आउटपुट 0 आ रही है। यस सर। एंड 0, if we write this thing, if 0, it means it is a false condition. false का मतलब है कि वो हमेशा else में जाएगा इस केस में, अगर उसको n and 1 करने पे 0 मिल रहा है। मैं करके दिखाता हूँ। सर ट्रू स्टेटमेंट क्या मानेंगे हम इसके अंदर? ट्रू होगा अगर मेरा ये आउटपुट करने पे 1 आ जाए। सपोज मेरे पास ऑड नंबर था 101 था सपोज, विच इज ए ऑड नंबर, एंड 1 करूंगा मैं, तो मेरा 1 आ जाएगा एंड दिस 1 विल बी ट्रू। यस सर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा ट्रू वाले एरिया में यहाँ पे ऑड लिखना पड़ेगा और नीचे वाली जगह पे मुझे इवन लिखना पड़ेगा। तो सर हमें असाइन करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली वो 1 ही मानेगा उसको अगर हमने n and 1 किया है? हाँ, अगर मैं सिर्फ n and 1 करके छोड़ दूंगा, तब देखते हैं कि क्या मेरा ये ठीक से आ रहा है। सिर्फ n and 1 करा है, 5 दिया तो ऑड नंबर, 8 दिया तो इवन नंबर, इट इज स्टिल वर्किंग। तो वो अपने आप में क्या कर रहा है, वो उसको ट्रू फॉल्स अपने आप देख रहा है कि वो n and 1 करने पे 1 आ रहा है या 0, तो उसको वो ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उस कंडीशन को सॉल्व कर रहा है। तो मतलब वो 1 को मतलब ट्रू ले रहा है और क्या कहते हैं 0 यस, को क्या कहते हैं फॉल्स, फॉल्स? ठीक है, फॉल्स, यस यस। सर। ठीक है, सर तो इफ के अंदर जो फॉल्स की कंडीशन आ रही है तो वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, सीधे एल्स पे ट्रांसफर कर दे रहा है, हाँ, राइट? जब देखो हमेशा यही होता है कि अगर मेरा इफ ट्रू नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स करने पे वो वैसे भी नीचे जाता था एल्स के पास। यस सर। The first part will be only running if my if is true, और वो true इस केस में तभी होगा अगर मेरा नंबर ऑड है, let's say 3, तो 3 को अगर आप and 0 1 करोगे तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा, which is true in this case। ठीक है, इस कंडीशन को वो if 1 को वो true लेगा, and in that case it is giving me an output of odd number। ये वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, हुआ क्या है? यस सर। ओके, सर तो यस। जैसे 1 और 1 को डिफॉल्ट ट्रू किया है और 0 को डिफॉल्ट फॉल्स किया है, जो बाकी के नंबर्स हैं वो बाइनरी के हिसाब से ट्रू फॉल्स करेगा या बाकी के नंबर्स को ट्रू ही रखेगा? कंडीशन में सिर्फ 0 1 होता है। ओके, मतलब कंडीशन में इफ यू आर राइटिंग वाइल इफ 0 इफ 1, तो ये फॉल्स है, यही वाला ट्रू है। एंड सिमिलरली एक लूप होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वाइल 1 अगर करोगे तो वो ऑलवेज ट्रू होता है। यस सर। ठीक है, सिमिलरली वाइल 0 होता है, ये भी एक तरह की कंडीशन होती है।
to get the work done in a loop. वो चलता रहता है जब तक वो condition false नहीं होती recurring loop. आएगा. ठीक है, तो ये वाला तो हो गया. Coming back to this screen, तो हमारा bitwise and operator वाला काम भी हो गया. The most important point was to write the condition also within the bracket. Now there are some basic questions. I think you can do these questions अपने आप कर सकते हो. You must have been taught till now. Flowchart सिखा दिया होगा क्लास में क्या होता नो है. सर, हमें अनिल वशिष्ठ सर ने बोला है कि पहले सारा प्रैक्टिकल वर्क मतलब कोड वगैरह लिखना एंड देन वील डू थ्योरी पार्ट. चलो ठीक है. So we will discuss this flowchart वाली thing later on. कंडीशनल लूप्स स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट तो इफ एल्स वाली होती है. कंडीशन लगाना, कोई भी कंडीशन लगा रहे हो मतलब इफ एल्स लगा रहे हो, है ना. कोई कंडीशन चेक कर रहे हो, जब भी हम वो चेक करेंगे कि वो इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो वो सारी चीजें कंडीशनल में आएंगी. ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाया आपको अभी तक क्लास में. if else करवाया है. इफ एल्स करवाया, वही कंडीशनल होता है. यस सर, वो तो करा दिया. इससे करवाया. ठीक है, एंड उसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, Yes sir, not equal to. है ना. तो Yes sir, डबल okay. इक्वालिटी चेक, ये वाला नॉट इक्वल टू. Yes sir. तो ये सब किया था सर. हाँ, इवन सिंगल ग्रेटर देन लेस देन, तो ये भी कंडीशन ही होती हैं. तो जब भी आप कुछ ऐसे कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो अंदर, और इनमें से कोई भी आप चेक कर रहे हो, तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि वो कंडीशन ट्रू होगा तभी मैं उसके अंदर वाली चीज चलाऊंगा. ठीक है, सो वी पहली वाली की है हमने सर, आपने करा दी थी. हाँ, तो देखो अब ये वाली चीज हमारी ऑलरेडी हो रखी है. हमने ये इफ वगैरह लगा के इवन ऑड का प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया, राइट. सो आई एम हाईलाइटिंग इट. Okay, now if you want to make this program, given the three angles of a triangle, you have to determine if it is a right angle triangle, isosceles, or right isosceles, or equilateral. So can you make it on your own? Who wants to make this program on your own and is willing to share the screen now? Okay, one student has raised the hand. सर So अब अभी like we write it and we share the screen. yeah, I just want you people to share the screen right away and write the code in front of us, so that whosoever will do this thing, his confidence will be boosted. Live coding करके देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा and your brain will also work more attentively. So Aryan has already raised the hand. So Aryan, I'm giving you the permission to share the screen. You can go ahead and share the screen and do the coding. Okay sir. Yes. Yeah, so you have to write a program to check the triangle for isosceles, right angle triangle, right isosceles, or equilateral. So I am putting I am copy pasting this problem statement in the chat box, and you all can start doing this program. You can solve this. सर हम इसमें और भी यूज कर सकते हैं ना. Yes, you can use और. अगर आप लॉजिकल और यूज करना चाहते हो तो डबल वो लगा दो, डबल पाइपलाइन. एंटर के ऊपर होता है बैकस्लैश के साथ वो जो स्ट्रेट लाइन है. हाँ, इसको 2 बार करोगे, दिस इज लॉजिकल और ऑपरेटर, कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या फिर ये वाली, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी या 4 में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी,
it will go ahead and run this if part. सर अगर हम A1 A2 A3 को एंगल्स लेके करें तो फिर नेक्स्ट वालों में हम रैंडम एंगल्स लेंगे, नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90 ऐसे, या फिर हम साइड्स लेके उसको साइड्स को लिख दे, क्या कहते हैं इनका दे आर नॉट इक्वल एंड ऑल ऐसे करके। नहीं, साइड्स नहीं, आपको एंगल्स के हिसाब से ही करना है ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल्स ही गिवन है, साइड्स की बात नहीं हो रही अगर आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ओके सर। यस, बस यू आर गिवन द 3 एंगल्स। सर ये डबल स्ट्रेट लाइंस और ऑपरेटर है? Yes, this is logical or. ओके सर। It means that if any of the condition, जो हमने ये यहाँ पे 3 कंडीशन लिखे हैं कि मेरा A1 A2 A3 में से एक भी 90 डिग्री होता है, then it is a right angle triangle. So Aryan, will you be putting one more condition here कि अगर suppose हमारा sum of 3 angles of a triangle 180 से ज्यादा है, so it is not a triangle, वो वाला भी condition check कर लेना। हो सकता है कि किसी ने इनपुट ही गलत दे दिया और तीनों का सम 180 नहीं बन रहा, तो वो वाली चीज Yes, भी sir. चेक करनी है हमें। सर तो ये सारे हम नेस्टेड में डाल देंगे। नेस्टेड भी डाल सकते हो आप, इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, 1 बाय 1 चेक करवा दो। और मतलब ये भी कर सकते हो कि सपोज आपका वो 180 नहीं आ रहा, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 180, देन you can say enter the values again, something like that can be done, or maybe you can just end the program right there only. सर else if ladder में इंक्लूड कर सकते हैं ना सभी कंडीशंस को? हाँ, जितना मर्जी else if कर सकते हो, but in the end it will end with the single else only. तो जैसे यहाँ यहाँ एल्स है, तो यहाँ मेरे को नेस्टेड में आ गया, तो मैं ये सेमीकोलन डालूं या खाली एंड में डालूं? सेमीकोलन तो आएगा ही। ठीक है, सेमीकोलन का मतलब है इट इज एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके सर। आर्यन या तो बेटर ही होएगा वी डू फर्स्टली ये 180 इक्वल कर दे एंड लास्ट वाली स्टेटमेंट एल्स कर दे, ये कर दे, क्योंकि एल्स वो होती है ना कि बिल्कुल नॉट वाली, मतलब इट्स योर चॉइस, मतलब फिर भी ऐसे भी ठीक ही है आई थिंक, इसमें भी एल्स इफ उठा लेगा। एक बार ऐसे उठा लेगा ये, एल्स इफ आप चाहे ऐसे लिख रहे हो या अलग अलग लाइन में लिख रहे हो, सब ठीक है। ओके सर। तो राइट एंगल कर लिया, तो राइट एंगल वो भी करना है, राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल विल बी फाइन कि तीनों में से एक भी 90 है तो काम चलेगा, बट लेकिन राइट एंगल आइसोसेलेस भी करना है ना? हाँ, in fact one more thing needs to be taken care of. Suppose मैं 90 90 0 कर दूं इनपुट में, 90 90 0, तो वो कंडीशन ओके, वो वो भी कंडीशन कैसे चेक चेक होगा? करना है। 180 भी है, वो ऊपर का पास कर जाएगा, बट देन 2 एंगल्स कैन नॉट बी 90 in a triangle. तो सर हमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। हाँ, मतलब इस आएगा। देखो ऐसा है, ये प्रोग्राम सिंपल से सिंपल भी बना सकते हो, इसको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी डू यू वांट टू ऐड इन दिस प्रोग्राम। ये तो अब आर्यन कर रहा है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ सम सिनेरियोज जो हमारे आंसर को खराब करेंगे, तो मैंने बोल दिया। अदरवाइज for you people, because you are just the beginners in this programming language, C programming is I think first time for you all, so that way even simple thing will be fine, पर जितना कॉम्प्लेक्स बना पाओ, जितने आप अलग अलग केसेस ले पाओ, it will be better for you, it will be better for your confidence. ओके सर।
इक्विलेटरल रह गया शायद। सेमीकोलन डाल दे। सर तो हमें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला हम कंडीशन दे रहे हैं A1 इज इक्वल टू और A2 और A3, तो इसके अंदर ही हमें एक और लाना पड़ेगा एल्स इफ करके कि वो नहीं, दोनों 290 नहीं होने चाहिए। हाँ मतलब आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इट्स ऑन यू। यहाँ पे देखो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी कैन यूज दिस और ऑपरेटर। हम यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं अगर किसी चीज में हम एंड लगा के चेक करना चाहें, दैट इफ लेट्स से वी तो यहाँ वांट टू। डाला है। हाँ एक एक तो डाला हुआ है, अदरवाइज और भी डाल सकते हो आप। मल्टीपल एंड और के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और सर ये एंड और के ऑपरेशन में हमें दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लेना है ना, जैसे आर्यन ने लिया है? हाँ ओके सर। बिकॉज देखो और वाली चीज तो ये है कि विद इन सिंगल ब्रैकेट अगर आपने मल्टीपल और लगा दिया तो वो एज ए होल अगर ट्रू हो जाती है। वी ऑल्सो वांट उसका सेकंड वर्जन। अब जैसे लाइन नंबर 18 देखो, लाइन नंबर 18 में एंड भी है और भी है, तो और वाले केसेस दोनों साइड अपना अपना सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों ट्रू हो जाते हैं तभी वो राइट एंगल आइसोस्केलिस बनेगा। यस सर, हाँ जी। तो यहाँ क्या लिखूं जो अगर नॉर्मल ट्रायंगल है तो? हमें बस 4 तरह की बताने थे, आपने चारों डिस्कस कर लिए। यस सर। ठीक है, ऐसे अलग से कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। जरूरी नहीं ओके है, जरूरी नहीं है एल्स लिखना, इसको हटा दो एल्स को। ठीक है सर। सर हाँ हाँ जी। सर इक्विलेटरल में तीनों तीनों इक्वल होंगे तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 ऐसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अगर इनपुट में 1 1 1 है फिर तो मतलब वो इक्वल टू तो 60 कर देंगे ना सर? तो वो 180 नहीं बनेगा ना सर। हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो हमने अब ऊपर चेक कर लिया कि 15th स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि हमारा सम 180 होना चाहिए। सपोज कोई नहीं लिखता, राइट, हम्म। तो उस केस में हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि तीनों इक्वल हैं, तीनों तो फिर वो बंदा कुछ भी लिख दे इक्वल। हाँ ये है कि अगर आप इक्वल टू करके उसको 60 भी चेक करवा लो, दिस इज द बेस्ट टेक्निक, करके सर देखो। हाँ बट जी। आई थिंक आर्यन ने और किया हुआ उसे। आई कहाँ? गेस वो A1 कंप्लीट ब्रैकेट भी आएगा दोनों एंड पे। हाँ हाँ भाई हाँ। कंप्लीट ये वाला भी आएगा एंड यस 27th लाइन में भी एंड आएगा कि हमारे तीनों 60 हैं, वो एंड आएगा ना कि और आएगा 27th वाले में। हम्म। तीनों 60 होने चाहिए। ओ हाँ हाँ यस सर सॉरी। एम्परसेंट ट्वाइस। एंटर मार के 3 इनपुट दे दो। हाँ ओ हाँ थर्ड वन शुड नॉट बी इक्वल भी डालना पड़ेगा। क्या मैं ये इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ? सर इसके अंदर मिस्टेक क्या हुई है? वो आइसोसलेस पहले वो तीनों इक्वल हो गए ना। अच्छा ओके, आइसोसलेस हाँ हाँ। तो सर हम आइसोसलेस में एंड डाल के A1 मतलब तीनों इक्वल भी ऐसे कंडीशन कर दे कैंसिल। आइसोस्केलिस क्या होता है? आइसोस्केलिस का मतलब ये होता है कि आपका तीनों एंगल छोटे हैं 90 से। यस सर। और क्या होता है? दो उसके दो। दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और होती है, हाँ दो दो। एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ दो एंगल इक्वल होते हैं, तो वो वाली चीज को थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। अच्छा आइसोस्केलिस का इनपुट दो, देखते हैं। रन इट अगेन एंड गिव द इनपुट ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल।
सर ये 60 आ गया इक्विलैटरल के लिए। हाँ ये ठीक है। 50-50-80 देना एक बार। तो सर अगर हम 30-30-9 नहीं नहीं 30 नहीं 50-50-80 50-50-80 80 ठीक है। हाँ 50-50-80 ठीक है। देखते हैं इसके लिए जा रहा है, कुछ भी नहीं आया। ऐसे इसके लिए इस वाली कंडीशन ठीक करने वाली है, इसको देखो लाइन नंबर 27 को कैसे अपडेट करोगे। सर तीनों तीनों इक्वल वाली हम कैंसिल कर दे, जैसे एंड A1 नॉट इक्वल, नहीं नहीं वो नहीं होएगा। ओनली 3-4 पीपल आर स्पीकिंग, बाकी जने भी पार्टिसिपेट करो, इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो। ये वाला एंड से भी तो कर सकते हैं ना, कोई भी दो साइड इक्वल हो। नहीं नहीं एंड तो फिर तो सारी इक्वल मान लेंगे ना वो। एंड में फिर सारी इक्वल होनी चाहिए। हाँ मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। वही करेगा। आ गया। वहाँ आ आगे गया आ आगे। गया आ गया। कुछ चेंज किया तूने? हाँ वो नहीं, यहाँ मैंने एक इक्वल टू रहने दिया था गलती से, अच्छा हाँ। तो मैंने अभी वो फिक्स किया था, तो अब हो गया। तो ये आइसोसेलेस भी आ गया। चलो कोई और इनपुट दो, राइट एंगल आइसोस्केलिस का इनपुट दो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम ट्रायंगल नॉट फॉर्म की भी दे सकते हैं ना एक, कि हाँ अगर ट्रायंगल नॉट फॉर्म्ड वाली चीज हमने वही हैंडल कर ली ना, पर वो एंगल मेंशन की हुई है ऊपर। एंगल्स आर इनकरेक्ट वाली चीज वही चीज यहाँ है। ओके सर। यस। तो वो स्टेटमेंट पहले ही मैं मेंशन कर देनी है कि एंगल्स इनकरेक्ट वाली। हाँ आप देखो अगर मैं होता मैं पता क्या करता, आफ्टर लाइन नंबर 17 जितना भी पार्ट है एंड तक उसको मैं 15 वाले इफ एल्स में रखता, कि अगर मेरा इनकरेक्ट है तो फिर मैं इनकरेक्ट प्रिंट करवा के बाहर आ जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, बाकी और कोई चेक भी नहीं करूंगा। एक काम करो आर्यन, आप इसको आखिरी में डाल दूँ। आप ना नहीं 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 इसको यहीं पर रहने दो, इसको कुछ मत करो। 18th लाइन है, इफ के पहले एक स्टार्टिंग ब्रैकेट डाल दो, मतलब इफ एल्स के बाद एक ब्रैकेट डालो, करली ब्रैकेट। कर लिया आएगा कौन सा आएगा, कर लिया आएगा शायद, हाँ कर लिया आएगा। मल्टीपल हाँ जी। हाँ एंटर मारो, एक एंटर मार दो, ठीक है। और एक रिटर्न 0 से पहले पिछली वाली लाइन के एंड में Enter। करली ब्रैकेट बंद कर दो, बस अब ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अगर आपका इनकरेक्ट है तो वो अंदर आके इतनी ज्यादा मेहनत बाकी करेगा ही नहीं। तो ये मेरे को सही इंडेंट करना पड़ेगा या ये चलेगा? इसमें इंडेंटेशन का इशू नहीं है, पाइथन में होता है, बट अगर ठीक आप है कर सर। लोगे तो वो दिखने में ज्यादा आसान लगेगा एंड एज ए टीचर हमें पता चलेगा। एक शॉर्टकट बताता हूँ, सिलेक्ट करो सारी लाइंस को इकट्ठा और टैब दबा दो। ओके। क्या कर देगा? ब्यूटीफाई से क्या होगा? हाँ ब्यूटीफाई भी कर सकते हो, मतलब कह सकते हो, बट इट इज बेटर के, मतलब हाँ ब्यूटीफाई इज राइट, फाइन फाइन वर्ड, नो इशू। सो इट्स जस्ट दैट अगर आप ऐसे करके कोडिंग करोगे इन योर एग्जाम्स आल्सो इट विल बी इजी फॉर द चेकर, हमें समझना आसान होता है कि अच्छा ये इसी का पार्ट है। तो यू कैन सी दैट आपकी कंडीशन चेक हुई एंगल्स इनकरेक्ट वाली, और आगे कुछ नहीं होगा। एक बार रन करके देखना, इनपुट देना कुछ ऐसा जिसमें 11178 देना। 11178। 111,178, ये तो ठीक है, 111,178 दो। आइसोसेलेस आना चाहिए। आ रहा है। सर हमने स्केलियन की नहीं दी, तो अगर हम 1 to 177 ले तब क्या? ये भी आ रहा वो है। हाँ ये भी हो रहा है ठीक से। ये तो 0 है ना, वो 10। वो करना 1,2,177। वो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ब्लैक स्क्रीन रहेगी ना, वो नीचे और वाला लाइन। इनपुट कुछ डिफाइंड ही नहीं है उसका। हाँ वो हाँ स्केलियन हमें ऐड करना पड़ेगा। 1 फिर 2 1 2 1 2 एंड 177। वो ब्लैक लाइन ही रहेगी। हाँ ये क्योंकि कुछ वो हमने यहाँ कुछ पे है नहीं। स्केलिन वाली चीज मिसिंग है इसमें। हम्म आप अपने एंड से स्केलिन इसको कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड एल्स कर दो एंड में, एल्स प्रिंट ऑफ स्केलिन, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो ऊपर क्वालिफाई नहीं कर रहा तो वो स्केलिन ही है इसका मतलब, ठीक है।
अब करो। तो वो सेमीकोलन रह गया। सेमीकोलन रहेगा। हाँ। 1 2 and 177। आ गया। ठीक है तो हमने सारे। ये चेक कर लिया था, ये राइट एंगल आइसोसेलेस चेक कर लिया था, इक्विलैटरल चेक कर लिया था, आइसोसेलेस चेक कर लिया था। अब राइट एंगल एक बार कर लेते हैं। हाँ 90 30 60 ले ले। 30 पर आ रहा है। सही है। ठीक है गुड। हो जाएगा अब सबका ये वाला भी। Yes, हाँ sir. जी सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you can stop your share screen, Aryan. यस सर। Okay, so this one is done now. Let's do this one. This is a easy one. फटाफट से बना देता हूँ। Electricity board charges these rates if the number is less than 100. Cost per unit is 1. Number of units consumed is greater than 100, less than equal to 300. Then cost is 2. Units greater than this, cost is 3. All user charge minimum ₹50. ठीक है, मतलब अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी ₹50 बिल तो आएगा ही। ओके सर, सो अगर तो हमें मोर देन 50 एंड लेस देन 100 करना पड़ेगा। देखते हैं एक सेकेंड। सो कमिंग बैक टू माय कोडिंग कंपाइलर। अब ये वाला स्टेटमेंट के ना वैसे कई मतलब निकलते हैं। ऑल आर चार्ज मिनिमम ऑफ 50। प्रैक्टिकली सोचें तो कुछ करो ना करो ₹50 बिल आना ही आना है। बट अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट पे जाएं इसका मतलब ये भी है कि 50 एक्स्ट्रा रुपीस डालो, यस सर। है ना। लेकिन चलो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज करा तो हम मिनिमम 50 वाला फर्स्ट वाले लेके चलते हैं केस। सो लेट्स से इंट यूनिट्स उसने बंदे ने कितने यूज करे, हम वो स्कैन एफ करवा लेते हैं। स्कैन एफ %d। सर ऐसा कर लेते हैं ना, 0 to 50 के चार्जेस इधर ₹50 कर देते हैं। हाँ ये हाँ ज़्यादा ऐसे कर बढ़िया। लो। So if I say if my units are less than equal to 50, तो ये तो है ही है। printf charges equal to int minimum equal to 50, और बस यहाँ पे मिनिमम वाला प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, else अब क्या करेंगे, if my units are greater than 50 and less than equal to 100। less than equal to 100। तो इस सर केस if के में अंदर तो सिंगल स्टेटमेंट है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स का जरूरत नहीं ना है। हाँ नहीं है, बस थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए, थोड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए कर दिया। अदरवाइज इफ आई स्किप दीज इट विल स्टिल वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, printf my charges will be equal to ₹1 per unit। %d units multiply by 1। ठीक है जी, हो जाएगा ये। उसके बाद else if my units are greater than 100 and क्या था वो, 100 and less than Less equal to 200। 300। 200 था। 300 है, मैं तो देख पा रहा हूँ क्वेश्चन को। अप टू 300 ठीक है। तो अगर 300 तक का है तो मेरा कितना आएगा, चार्जेस विल बी इक्वल टू %d एंड इट विल बी इक्वल टू यूनिट्स। अच्छा ग्रेटर देन 100 है ना, तो हम करते हैं 100 प्लस यूनिट्स माइनस 100 इंटू 2।
क्योंकि वो लिखा हुआ है वहां पे कि 100 से ज्यादा है तो 2 रुपए लगेंगे, ठीक है, पर यूनिट। तो 100 तो आना ही था, प्लस 100 से ऊपर जितना भी है इंटू 2 के हिसाब से वो वाले पैसे कट जाएंगे। एल्स इफ greater than 300 its unit is multiplied by 3। तो मैं इसको अब L से रख रहा हूँ कि चलो ये तो इसका मतलब 300 से ज़्यादा ही है। So if my charges are like this, हंड्रेड पहले 100 का, फिर 101 से 300 तक का 200 इंटू 2 ऐड हो जाएगा एज इट इज, प्लस 300 plus units minus 300 into यूनिट्स 3। माइनस 300 इंटू 3। यस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अरे यार ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस 300 इज से 300 300 क्या, units minus 300। हाँ यस, माइनस 300 इंटू 3। 300 से ऊपर जितना भी है वो 3 रुपए के हिसाब से है। सो दैट्स ऑल, बस खत्म। प्रिंट एफ तो हो ही गया, रिटर्न 0 करो, खत्म करो। देखते हैं, अब टेस्ट कर लेते हैं हर सारे केसेस। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, में एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था कि आपका 50 रुपये तो आना ही आना है बिल, अदरवाइज अगर आपका लेस देन इक्वल टू 100 है तो आपका 1 रुपी पर यूनिट है, 100 से 300 की रेंज में है तो 2 रुपीज़ पर यूनिट है, 300 प्लस है तो यूनिट इज 3 रुपीज़, ठीक है, अबव 300। तो लेट्स गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि सपोज मैंने यूनिट से बोले कि मेरे 10 यूनिट ही लगे हैं जी, ज़्यादा चला ही नहीं, तो 10 यूनिट में आपका बिल 50 रुपये आया। एंड नाउ इफ आई से माई यूनिट्स आर 75, तो 75 रुपीज़ बिल आ जाएगा, ठीक है। 50 तो आने था बट देन वो 1 के रुपीज़ के हिसाब से क्वालिफाई कर गया ना। इफ आई से माई यूनिट्स आर 101 160 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है, अच्छे से दिख जाएगा। अब देखो पहले 100 का तो 100 आना ही था, उसके बाद 60 इंटू 2 120 ऐड हो गया 220 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा एक सिमिलरली क्वेश्चन है, हम्म तो जैसे क्वेश्चन में दिया है पर यूनिट, हम्म तो पर यूनिट का मतलब है खाली जो 100 से ज्यादा है या सारे 160 में पर यूनिट 2 लगेंगे? देखो मेरे जब यहाँ पे ये लिख देना कि इट इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 100, तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट इन दिस रेंज। ओके, सिमिलरली इन दिस रेंज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड लेस देन 300, ये वाला पर यूनिट इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ इस रेंज में, ठीक है। तो ओके, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब अगर आप रियल वर्ल्ड में भी सोचो, अगर आपका इनकम टैक्स आपने कभी सॉल्व करा होगा 9th-10th में क्वेश्चन, इनकम टैक्स भी ऐसे कैलकुलेट होता है कि अगर किसी की सैलरी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो मल्टीपल स्लैब्स में आता है कि मतलब अच्छा 5 लाख के हिसाब से इसका इतना काट दो, 5 to 10 के हिसाब से इतना काट दो, 10 प्लस ओके, ऊपर 10 प्लस के ऊपर 30% काटेंगे, ऐसा कुछ होता है इनकम टैक्स में भी। ओके सर। So that kind of same rule is being applied here, ठीक है, रियल वर्ल्ड के हिसाब से हम बना रहे हैं। So now if I say my let input be 400, ठीक है, 410 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये मेरा 830 बिल ठीक आ रहा है। रूल ये था कि पहले 100 का 100 रुपये आना था, अगले 200 का 200 आना था, तो मतलब 500 500 तो 500, यही आ गया, ठीक है। यस सर, और 110 ये थे, 110 में इंटू 330 ऐड हुआ, द आंसर इज यस सर, 830। सो सही है। दिस इज फाइन, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम which we were trying to make, and so the answers are also correct। सर ठीक है। ग्रेटर देन 300 वाले में सिर्फ 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमारे लिखा था कॉस्ट पर यूनिट इज 3 रुपीज, वैसा। हाँ देखो मैं वही कह रहा हूँ, इसके इस लाइन के मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, बट इन माय केस जो मेरी समझ कहती है वो यही कहती है कि 300 से ऊपर वालों को 3 रुपए रखो। अगर आपका यस सर, 300 से ऊपर है, जो सपोज अब 410 मैंने डाला, तो 110 फालतू है, तो उस 110 के ऊपर 3 रुपए लगेगा, ना कि पूरे के पूरे 410 के ऊपर 3 रुपए लग जाएगा। सर तो तो वो जो जो remaining numbers 100 है से 200, हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मैं तो कह रहा था कि जो 100 से 300 के बीच में उनको हमें 2 देना ही पड़ेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले 100 का तो 100 रुपये है ही है,
सपोज मैंने 110 डाला, तो वो सिर्फ उतने 10 के लिए 2 रुपए लगाएगा, पहले 100 के लिए 100 ही था। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना, तो ये वाली चीज ऐसे करके ध्यान दे सकते हैं। एंड स्पेशली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में तो फिर ऐसे चलना पड़ता है कि हमें स्लैब वाइज आगे बढ़ना पड़ता है, ना कि हम एज इट इज मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करके कर देंगे खत्म। ठीक है। यानी पिछले जितने भी रेंजेस हैं उन सब के भी अमाउंट्स ऐड करने पड़ेंगे, फिर जाके 300 से ऊपर जितना, लाइक फॉर एग्जांपल 410, तो वो 110 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ वही किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये देखो पहले 300 के लिए मैंने 500 का बिल बना दिया, 100 प्लस 200 इंटू 2। ये पहले 300 यूनिट की बात खत्म हो गई है। ये 100 का मतलब है 100 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 2। पहले 300 यूनिट के लगे उसके 500 रुपए। उसके बाद बचे हुए 410 माइनस 300, 110 के ऊपर लगे उसके मल्टीप्लाई 3 रुपीज। समझ आ रहा ओके, है हुआ क्या? यस सर। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, दिस इज सर इसके ना लूप्स कहाँ बने हैं? लूप्स नहीं बने, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट ही लगी है अभी तो, हमने लूप नहीं लगाया कोई। लूप पता है कब लगेगा? लूप लगेगा सपोज आपने इस चीज को कंटिन्यू रखना है। सपोज अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने बोल दिया तो फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू मेक ए प्रोग्राम टू चेक इफ माय नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, और वो तब तक चेक करता रहे जब तक मैं उसको जीरो ना दे दूं इनपुट में, -1 ना दे दूं कि -1 चेक करना पड़ गया। तो मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ। अभी लूप्स आपको करवाने का मन नहीं था बिकॉज आपकी क्लास में शायद लूप्स शुरू नहीं हुआ होगा। सर अभी तो हमें स्विच कराना है, उसके बाद लूप्स कराएंगे। हाँ, अभी मैं तभी वो वाला पंगा ले नहीं रहा था। आई थिंक लूप वाला मैं अगली लैब में करवाऊंगा, ऐसे जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। ओके सर। ठीक है, सर लूप ऐसी जगह पे काम आता है जैसे हमें पहले 10 रेपिटेशन। प्राइम नंबर प्रिंट करवाने हो या फिर। हाँ सपोज अब देखो, सपोज आपने 1 to 100 की काउंटिंग प्रिंट करवानी है। एक तरीका है कि आप प्रिंट करो और प्रिंट के अंदर पहले 1 लिखो, फिर अगली लाइन में 2 लिखो, फिर 3 लिखो, ऐसे करके आप 100 तक जाओ, 100 बार लिखोगे, है ना? यस। ऐसे करके करोगे तो मतलब आपको 100 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा। वर्सेस आप एक काम करो, बहुत आसान है। इंट n इक्वल टू सपोज 1 किया, एक ऐसे करके लूप होता है वाइल, वाइल यस माई सर। n इज नॉट इक्वल टू 100। ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं। लेस देन कर लेते हैं, लेस देन कर लेते हैं, नॉट भी चलेगा वैसे तो लेस देन कर लो जब तक मेरा और नेक्स्ट वाले भी तो उठाएगा, अगर नोट लगाओगे तो नेक्स्ट वाले भी तो उठाएगा 100 से, हाँ 101। पर मैंने करने +1 था तो अगले पे कैसे पहुंच जाता? तो मैंने क्या करना था यहाँ पे, printf n, ठीक है, \n कर देते हैं ताकि मैं हर नंबर को नया लाइन में देके जाऊं। 100 की बजाय 10 करते हैं, ठीक है, ताकि दिख भी जाए आउटपुट एक ही बार में। एंड n प्लस प्लस, n प्लस प्लस वाला भी अभी डिस्कस हो जाएगा, है अभी 15-20 मिनट। सो इन दिस केस आई एम राइटिंग कि मेरा n1 है जब तक मेरा, अब ये लूप आ गया, लूप का मतलब ये है कि ये वाले ब्रैकेट्स को चलाते जाओ जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इस केस में ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टिल दिस कंडीशन इज ट्रू तब तक ये चलता जाएगा मल्टीपल टाइम्स। जब ये फॉल्स होगा, जब ये चीज आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, फॉल्स होने के बाद वो अपने आप इस ब्रैकेट से बाहर आके प्रोग्राम को खत्म कर देगा। तो लेट्स से आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, लेट्स डू इट एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। अब देखो 1 2 3 अप टू 10 सारी काउंटिंग प्रिंट हो गई है 1 to 10 की। ठीक है, एक तो तरीका था कि आप प्रिंट एफ 10 बार करते और आपका 10 बार वो नंबर प्रिंट होता, वर्सेस हमने प्रिंट एफ एक ही लगाया और मैंने क्या किया यहाँ पे, इनिशियली मैंने बोल दिया कि मेरा n1 है। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि मेरा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली ट्रू है ये बात। तो मैं अंदर आया, इसके अंदर आने पे मुझे मिला प्रिंट एफ n, तो मैंने 1 को एज इट इज प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैं प्रिंट एफ वाली चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से। n प्लस प्लस का मतलब क्या है कि मेरे अब n को +1 कर दो सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोबारा से वो वापस
लूप में है, क्योंकि लूप का मतलब ये होता है बार 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 वो चलाएगा। इसको खत्म करने के बाद वो दोबारा ऊपर जाएगा इस कंडीशन के पास। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 ये अभी भी ट्रू है। फिर वो प्रिंट करेगा उस 2 को, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट वाली लाइन है तो प्रिंट आपने करवा दिया। वो दोबारा से n प्लस प्लस करेगा तो n विल बी इक्वल टू 3। वो वापस दोबारा ऊपर जाएगा, 3 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फिर 3 को जाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये वाली चीज प्रिंटिंग होती रहेगी 1 2 3 4, एंड हर बार वो +1 करता जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। जब उसका n इक्वल टू 10 करा हमने, सपोज मेरा n इक्वल टू 10 आ गया, तो फिर n इक्वल टू 10 प्लस प्लस होने के बाद आया था, ठीक है, वापिस आया n इज लेस देन इक्वल टू 10। अब नाउ 10 लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज स्टिल ट्रू क्योंकि इक्वल टू तो है ही है ना। तो फिर वो आखिरी बार अंदर आएगा, अंदर आके 10 प्रिंट करवाएगा, 10 को 11 करेगा, वापस जाएगा 11 चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10। ये वाली चीज आपकी फॉल्स हो जाएगी, इसलिए वो फिर क्या करेगा 1 2 3 4 अप टू 10 प्रिंट करवाने के बाद उसको अंदर आके प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सीधा बाहर भेज देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। दैट्स व्हाई माय आउटपुट वाज 1 to 10। सर तो उसके ना लूप में मतलब ये वाइल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो ये n प्लस प्लस ये एक साथ काम कर रहे हैं। देखो, वाइल वाइल का मतलब है कि वो जब तक ये चीज ट्रू कंडीशन रहेगी, सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तब तक ये अंदर का काम करेगा। अब n प्लस प्लस लिख लो, यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 10 लिख लो, चाहे आप n इक्वल टू n प्लस 1 लिख लो, मतलब आपके ऊपर है आपने यहाँ पे क्या लिखना है। n प्लस प्लस बंधा नहीं हुआ इसके साथ, n प्लस प्लस की बजाय कुछ भी हो सकता है। तो जो जो हम एंड में क्या कहते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या कंटिन्यूसली रिपीट हाँ, करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। यस यस यस, दीज इंस्ट्रक्शंस, ये चाहे 2 लाइन की हैं चाहे 200 लाइन की हैं, ये तब तक चलेंगी जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी। क्लियर सर। ये Yes. नॉट इक्वल टू 10 करना सर एक बार। अभी देख लो, नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 तक प्रिंट करवाएगा। देखो क्या 9 के बाद फिर से 1 से नहीं शुरू होगा? अच्छा नहीं नहीं होगा। वापस 1 कैसे हो जाएगा ना, वो क्या हमने करेगा, कुछ जब जब उसका 10 10 नॉट इक्वल टू 10 आया तो वो ट्रू हो गया, 10 हाँ नॉट वो इक्वल 9 टू, के बाद अंदर नहीं जाएगा, समझ गया ये तो मैं। पर हाँ, जब वो वापस जाएगा ऊपर फिर नहीं कुछ कर रहा। वो वापस ही नहीं जाएगा ना, जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बाहर आ जाएगा उससे, जब तक ये सर ट्रू था। हाँ जी, सर अगर हम अंदर ही रिटर्न 0 डाल दे while लूप के तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा या खत्म हो जाएगा एक ही बार में। ओके ओके सो इट्स लाइक अ देखो ब्रेक स्टेटमेंट। देखो करके देखो, हमने क्या करा, हमने 1 लिया और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 किया, और अंदर आए 1 प्रिंट करवाया, 1 को 2 किया और रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 का मतलब खत्म कहानी, आप 1 प्रिंट करवा के बाहर आ गए, ओके सर। ठीक है। यस सर। यस, हो जाएगा ये। सर वो एक वन एक चीज हम्म, सर सर वो वन प्रिंट करने के बाद मतलब वो n प्लस प्लस वो रीड ही नहीं कर रहा कि वो वापस ऊपर जाएगा नहीं। n प्लस प्लस करेगा, उसको 1 का 2 करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हमने उसको खत्म ही कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, उसको मौका नहीं लगा ऊपर जाके चेक करने का। अच्छा क्लियर सर हाँ जी। हम्म एक छोटा सा ना, मैंने यहाँ पे अब एग्जांपल देना आपको, मेरे को बताना है इसका आंसर। सपोज माय n इक्वल टू 10 है एंड आई राइट दिस printf %d n plus 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 n. Can anyone tell me the output of this? n प्लस प्लस 11 हो जाएगा। चलो रुको एक सेकंड, हम्म इसका आउटपुट बताओ पहले, थोड़ा सिंपलीफाई रखते हैं। सर 11। 11 सर 9 हो जाएगा क्या? तो 11 ही है। माइनस तो नहीं होगा ना यार, प्लस है, ठीक है माइनस होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको n प्लस प्लस लिखूंगा, अब आउटपुट बताओ, विल इट बी स्टिल 11? यस सर। नहीं सर 10 तो होगा। 10 आएगा। 10 होगा, 10 होगा। वो देखो, नेक्स्ट स्टेप में 11 बनेगा। यस, एक्चुअली यही चीज सीखने वाली है, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं इसको। ये वाला है जो प्लस प्लस n, इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। n प्लस प्लस है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब ये है दैट इफ आई राइट प्लस प्लस n हियर, जैसे मैंने पहले लिखा था, तो वो पहले उसको +1 करेगा, फिर वो प्रिंट होने के लिए भेजेगा। पर नाउ आई हैव रिटन n प्लस प्लस,
इस केस में वो पहले n को भेज देगा, और जब ये सेमीकोलन उसको मिलेगा कि अच्छा अब अगली लाइन पे जाना है, अगली लाइन पे जाते जाते वो उसको 10 का 11 करके जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस चीज को अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट्स से इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ मैं कोड को। आई राइट इट एज दिस, 10 11 होगा। ठीक है। तो अब आउटपुट देखेंगे तो आपका 10 और 11 आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस n लिख देता हूँ तो मेरा आउटपुट 10 आएगा 12 10 and 12, 12 ठीक है। यस सर। हो जाएगा ये। यस सर। यस सर एक Yes, sir. मुझे डाउट था हम्म सर, जो कंपाइलर था वो कब क्या कहते हैं राइट टू लेफ्ट पढ़ता है और कब लेफ्ट टू राइट पढ़ता है, एक बार थोड़ा क्लियर कर दो। इस केस में जब भी हम कोई वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, हमेशा देखो प्रिंट वाली चीज तो आपको ऑलरेडी काफी आइडिया है कि अगर आपका printf में यू हैव रिटन समथिंग, लेट्स से कोई सेंटेंस है %d और फिर से कुछ चल रहा है, फिर %d और फिर एंड में जाके आप a कॉमा b कर रहे हो, तो वो तो बाय सीक्वेंस उसको दे देगा कि a वाला पहले वाले %d को मिल जाएगा, b वाला दूसरे वाले को मिल जाएगा, ठीक है। बट व्हेन यू आर असाइनिंग समथिंग, लेट्स से आई एम राइटिंग दिस n इक्वल टू 10 और फिर मतलब इस केस में तो राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है, ठीक है। n प्लस प्लस है, इस केस में भी n इक्वल टू n प्लस 1 कर रहा है, तो वो भी +1 करके राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो तो असाइन में राइट टू लेफ्ट वो रीड करेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अब मज़ा आएगा कि क्या करना है। मुझे इसका आउटपुट बताओ सारे जने। सो इफ आई राइट इट एज %d, हाँ जी, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। 10 11 10 11 10 11 11,12 11 12 11 12 10 comma 11 10 comma 12 10 10 comma 12 11 होगा। चलो देखते हैं। 11 10 comma 11 12 12 यस सर। वाई? सर क्योंकि वो भी टर्मिनेट नहीं हुआ था, वो n यस प्लस सर, प्लस पूरा वो रीड कर कंटिन्यूएशन लेगा। में चल रहा है। हाँ जी और समझाओ। तो सर जब वो जैसे रीड अगर कर हम हाँ, 1 by 1 1 by 1, हाँ जी। सर जैसे अगर हम उसको करते हैं प्लस प्लस n एंड देन n प्लस प्लस और उसको टर्मिनेट कर देते हैं, हम्म तो वो आता 10 और सॉरी 11 और 10, हम्म 11 और वो 11 और 11, बट हमने उल्टा किया है तो वो पूरा n प्लस प्लस को रीड कर पा रहा है, इसलिए उसको 11 एंड देन 12। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या करा मैंने, पहले मैंने n प्लस प्लस का प्रिंट करवाया, फिर मैंने प्लस प्लस n का प्रिंट करवाया, तो मेरा आउटपुट आएगा 10 and 12, ठीक है। वाई? ये वाली चीज आसान है कि क्यों ऐसा हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कि ये 10 और 12 ही क्यों आया। अच्छा, वो n इज इक्वल टू n प्लस प्लस वाला वो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स बन जाता है, वो बता रहे हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब मैंने सिर्फ एक नंबर को प्रिंट करवाया तो उसने 10 प्रिंट किया, ये तो समझ आ और गया। अगली लाइन में जाते जाते वो 11 करके गया, और इसका उसका 12 हो गया, तो वो 11 12 उसने प्रिंट ये करवा तो दिया, आ गया ठीक है। ये पिछला। समझ में आ रहा है सबको। अब अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो इस केस में हमारा आउटपुट आया था 11 and 12। अब ये क्यों आया था? बिकॉज व्हेन वी आर ट्राइंग टू फिल द वैल्यूज हेयर, ठीक है, ये जब इसकी वैल्यू फिल करता है ना वो राइट टू लेफ्ट आता है, वो पहले n प्लस प्लस करके उसको 11 कर देगा, राइट टू लेफ्ट आया, उसने n को 11 कर दिया 10 से, और उसने जब यहाँ पे वो पहुंचा, उसने यहाँ पे पहुंच के 11 रखा उसको, ठीक है। बट देन व्हेन इट स्टार्टेड प्रिंटिंग, तो उसने यहाँ पे उसका 11 किया, और जाते जाते जब वो प्रिंट करवा रहा था उसको 12 मिल गया, उसने 11 को भी दोबारा से प्लस प्लस कर मतलब ये वाला सेकंड वाला उसका असर दिखा गया। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। देखो क्या हो रहा है इस केस में, हमने राइट टू लेफ्ट आना था, ठीक है। पहले ये वाली चीज ने मेरे n को 11 कर दिया, और वो वाला 11 इसको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 11 के ऊपर इसने काम करना था जो भी काम करना था, लेकिन ये इसको 11 ही भेजेगा, समझ आया? तो 11 क्यों भेजेगा एक बार बता दो। अरे यार ये तो यहाँ पे भी यही था जब ये इसने इसको भेजा था 10, अच्छा ठीक है, हाँ जी यस सर। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसके पास जब ये वाले के पास, मेरे फर्स्ट वाले के पास
ठीक है, फर्स्ट वाले के पास जब मेरा n पहुंचा वो 11 होके आया, यहाँ से उसने 11 करवाया, प्रिंटफ में राइट टू लेफ्ट उसने कैलकुलेशन करनी थी, बट यहाँ पे आके अंदर आके कहानी जो प्रिंट होनी है वो इस वाले प्लस प्लस n ने क्या किया, this plus plus n when it started getting implemented on the back end उसने 11 कर दिया शुरू में ही, ठीक है। और जब इसके पास गया वो इसके वाला चीज देखने के लिए, तब उसने 11 को एज इट इज आगे भेज दिया फॉर प्रिंटिंग, बट देन क्योंकि उसने आगे जाना था फॉर प्रिंटिंग, उसको अगली चीज भी प्रिंट करवानी थी, तो ये वाले n प्लस प्लस वाले ने, जो मेरा फर्स्ट वाला n प्लस प्लस था, इस वाले ने यहाँ पे भेजते भेजते अपना भी कुछ असर करके दिखाया। अब हुआ क्या है, जो इसने 11 प्रिंट करवाया पहले वाले ने, वो इस वाले का असर है सेकंड वाले का, लेकिन जो सेकंड वाले ने 12 प्रिंट करवाया है वो इस वाले का पोस्ट असर है। मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे का वो कर दिया कि मतलब मैं तेरा नंबर बढ़ाऊंगा तू मेरा नंबर बढ़ा इस केस में। सर तो पहले वो राइट पे पहुंचा वो 10 यार देखो जो 11 हुआ। जब हम, मैं एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ इसको, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ अलग वेरिएबल लेके, ठीक है, 1 सेकेंड। सो इफ आई, वैसे टाइम अप होने वाला है, इट इज़ ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट। अब मैं यहाँ पे सपोज a इक्वल टू 10 ले लेता हूँ एंड b इक्वल टू 11 ले लेता हूँ, एंड आई राइट इट हियर एज a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस b। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? 10 और 12। ये लो, अब बताओ। 10 और और 11 11 10 11 10 एंड 11। 10 and 11 हाँ जी। ओके, अब मैं यहाँ पे सपोज एक और रख लेता हूँ, a प्लस b। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? एक सेकंड 21 10 11 21। लेट्स सी। नहीं, एक सेकंड सर, 10 11 20। तो पहले वो राइट वाले को पढ़ रहा है सर। मैं हाँ, वही हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, right, सबसे पहले वो राइट वाले के पास जा रहा है, इनिशियल वैल्यूज राइट के पास जाएंगी। मैं सबसे पहले यही समझाने की कोशिश कर Yes, रहा sir. हूँ। पर जो पिछला प्रोग्राम था उसमें पहले राइट टू लेफ्ट किया, फिर जब प्रिंट करा रहा था तो लेफ्ट टू राइट भी गया यार ना, जब प्रिंटिंग के टाइम पे तो उसको मिलेगा ही, जैसे उसने प्रिंट करवाना वो करवा लेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन उसको राइट से लेफ्ट करनी है। समझ आ अंडरस्टूड। गया? राइट से लेफ्ट Yes. करेंगे तभी हमारा a प्लस बी 20 आ रहा है। वो बाद में उसको जो मर्जी करता रहे, और ये तो सिर्फ प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के टाइम पे तो उसने बस आके चिपकाना ही है फोटोकॉपियां बना के। ये वाला जो पार्ट है डबल कोट्स वाला, दिस इज नॉट अफेक्टिंग आवर कैलकुलेशन। जो हमारी कैलकुलेशन है वो राइट टू लेफ्ट आ रही है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। समझ में आ गया? दिस इज द सीक्वेंस। Yes, sir. सर बस बस जब वैल्यूज डालनी है तब लेफ्ट से राइट जाएगा ना, वैल्यूज अंदर डालनी है, भाई मेरे रिप्लेस करनी जब जब हमने प्रिंट करवाना है सिर्फ तब लेफ्ट राइट आएगा ये है। वाला। ओके सर, यस सर, जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है इस केस में, जो मेरे ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें राइट टू लेफ्ट चलेगा ये। यस सर, ठीक है जी, यस सर। चलो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट लैब। टाइम इज अप नाउ। थैंक यू, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। ओके, थैंक यू सर। सर वो Thank you, असाइनमेंट sir. अपलोड कर देना प्लीज। हाँ, you will get the assignment 1 today within 5-10 minutes. I'm going to upload it. एंड सर सर ये जो आज वाला आज assignment की है वो क्या वाली। किया? जो आज की है वो that you can see in the recorded video. ओके Okay, सर, Okay, थैंक यू सर। okay then, थैंक यू bye. सर। Thank Yes, you. sir.